Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover the fifth chapter of class 10th NCERT Geography. The name of the chapter is Minerals and Energy Resources. Minerals and Energy Resources. You have studied that the Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. हम सभी ने पढ़ा है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो डिफरेंट मिनरल से बनी है. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement और various metals extract किए जाते हैं इन minerals से after proper refinement. What is a mineral? Mineral होता क्या है? Geologists define mineral as a homogeneous, naturally occurring substance. Geologists define करते हैं mineral को as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in varied form in nature, ranging from the hardest diamond to the softest talc. जो minerals होते हैं वो found किए जाते हैं varied form में nature की. You have already learnt about rocks. हमने पढ़ा था पहले भी rocks के बारे में. Rocks are combination of homogeneous substances called minerals. जो rocks होती है वो combination से बनती है homogeneous substance के जिनको minerals कहते हैं. Some rocks, for instance limestone, consist of a single mineral only, but majority of the rock consist of several minerals in varying proportion. कुछ रॉक्स होती है जो सिंगल सब्सटेंस से बनी रहती है और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द रॉक्स होती है वो कंसिस्ट करती है सेवरल मिनरल इन वेरिंग प्रोपोर्शंस में. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the material formed. एक पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जो एक सर्टेन कॉम्बिनेशन से बनता है एलिमेंट के वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे. दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, crystal forms, luster and density that a particular mineral possesses. और इसकी वजह से रिजल्ट होता है कि कलर में चेंज आता है, हार्डनेस में, क्रिस्टल फॉर्म में, लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पजेस. जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं इन प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने के लिए मिनरल्स को. स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट. जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. जो जियोग्राफर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं मिनरल को एज पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of landforms. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. जो distribution होता है mineral resources का and associated economic activities का are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age, and physical and chemical composition. However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. Minerals को classify किया गया है कमर्शियल पर्पस के लिए. Mode of occurrence of minerals. Where are these minerals found? Minerals are usually found in ores. जो minerals होते हैं वो usually found किए जाते हैं ores की form में. The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. जो term होता है ore उसको use किया जाता है describe करने के लिए an accumulation of any mineral mixed with other element. जो एक mineral होता है वो mix रहता है other elements के साथ, उसको describe किया जाता है ore से. मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स. मिनरल्स जो होते हैं वो इन फॉर्म्स में अकर करते हैं. इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, क्रीव्स, फोल्ड और जॉइंट्स. जो इग्नियस रॉक होती है और मेटामॉर्फिक उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो अकर करते हैं क्रैक्स, क्रीव्स, फोल्ड्स और जॉइंट्स में. द स्मॉलर अकरेंस आर कोल्ड वेन्स. जो स्मॉलर अकरेंस होते हैं उनको वेन्स कहते हैं. एंड द लार्जर आर कोल्ड लॉजेस. और जो लार्जर होते हैं उनको लॉजेस कहते हैं. इन मोस्ट केसेस दे आर formed when minerals in liquid, molten and gaseous form are forced upward through cavities towards the earth's surface. और most cases में they are found when minerals in liquid, molten and gaseous form. जब ये जो minerals होते हैं वो liquid, molten या फिर gaseous form में force होते हैं upward बाहर आने के लिए through cavities से टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस की तरफ. दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज. और वो कूल और फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं. मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लॉजेस. ये जब कूल हो जाते हैं सॉलिडिफाई और फिर उसके बाद मेटालिक फॉर्म में बन जाते हैं जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक, लेड इनकी फॉर्म में आ जाते हैं. इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स. और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो नंबर ऑफ मिनरल्स होते हैं वो अकर करते हैं बेड्स या फिर लेयर्स में.
दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन. ये डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं. एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. और coal form होता है and some form of iron. coal और कुछ form iron ore की have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. और under great heat और pressure की वजह से ये इनका कंसंट्रेशन होता है और उसकी वजह से कोल और आयरन और बन पाते हैं. अनादर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम. और अनादर ग्रुप जो है सेडिमेंट्री मिनरल्स का वो इंक्लूड करता है जिप्सम को, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट को. दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन. ये इवेपोरेशन की वजह से फॉर्म होता है, स्पेशली इन एरिड रीजन्स. अनादर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स. और अनादर फॉर्म जो होता है मिनरल्स का वो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स की वजह से एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्टिनेंट्स constituents leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. और इसी के तरीके से बॉक्साइट फॉर्म होता है. ये चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का, जिसमें मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स होते हैं. मेटालिक में आता है फेरस जो कंटेन करते हैं आयरन को, नॉन फेरस जो कंटेन नहीं करते आयरन को लेकिन वो मेटल होता है, और फिर थर्ड होता है इसमें प्रीसियस जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आता है. और दूसरा होता है इसमें नॉन मेटालिक में आ जाता है जैसे मीका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एटसेट्रा. और एनर्जी में आता है, हम सबको पता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आता है एनर्जी मिनरल्स में. Certain minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills. कुछ minerals occur करते हैं alluvial deposits में. These deposits are called placer deposits. ऐसे deposit को placer deposits कहते हैं and generally contain minerals which are not corroded by water. और ऐसे minerals को contain करता है जो corrode नहीं होते हैं water से. Gold, silver, tin and platinum are most important among such minerals. और gold, silver, tin, platinum important है ऐसे minerals में. The ocean water contain vast quantities of minerals. जो ocean water होता है वो contain करता है vast quantities minerals का. But most of these are too widely diffused to be of economic significance. However, common salt, manganese and bromine are largely derived from ocean water. और common salt, magnesium and bromine को largely derive किया जाता है ocean water से ही. The ocean beds too are rich in manganese nodules. Ocean beds वो rich होते हैं manganese nodules में. Red hole mining किसे कहते हैं वो भी देख लेंगे. Red hole mining. Do you know that most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government? India में most of the जो minerals है वो nationalized है and their extraction is possible only after obtaining ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज. लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे मिनरल्स को ऑन किया जाता है इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज के द्वारा. इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, iron ore, limestone and dolomite etc. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining. तो rat hole mining किसे कहते हैं? long narrow tunnel को known as the rat hole mining. The National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. तो इधर चेरापूंजी में और चेरापूंजी और कहाँ पे जोवाई में यहाँ पे माइनिंग होती है फैमिली मेंबर्स के द्वारा और वो एक लॉन्ग नैरो टनल बना लेते हैं जिसको रेड होल माइनिंग कहते हैं. एनजीटी ने इसको डिक्लेयर किया है कि ऐसी एक्टिविटीज इलीगल है और रिकमेंड किया है कि ऐसी जो एक्टिविटीज है उनको स्टॉप कर देना चाहिए. India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. India में बहुत तरीके के mineral resources है लेकिन वो unevenly distributed है. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic mineral, mica and many other non-metallic minerals.
और पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन करते हैं रिजर्व्स को, कोल के, मेटेलिक मिनरल, मीका एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स को भी. सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम हैज मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट. गुजरात और असम वाले एरिया में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं. राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैज रिजर्व्स ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल्स. राजस्थान वाले एरिया में नॉन फेरस मिनरल्स मिलते हैं. The vast alluvial plain of North India are almost devoid of economic minerals. And these variations exist largely because of the differences in geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. तो जो ये variation आते हैं इनके formation में ये exist करते हैं largely because of the differences in geological structure, possesses time involved in the formation of minerals. और इनकी वजह से इनके कलर डिफरेंट हो जाते हैं, इनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. Let us now study the distribution of few major minerals in India. जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में. Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. Metallic minerals का 3/4 जो टोटल वैल्यू होती है प्रोडक्शन की वो फेरस मिनरल्स का ही होता है. दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज. और ये प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलपमेंट के लिए मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए. इसमें पहला है आयरन ओर. आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. आयरन ओर बेसिक मिनरल है और बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स. इंडिया रिच है गुड क्वालिटी आयरन ओर्स में. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर. जो मैग्नेटाइट है वो फाइनेस्ट आयरन ओर है विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. और इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो 70% तक रहता है. इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज. इसमें एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज है. स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. और ये स्पेशली वैल्यूएबल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए. हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर. जो हेमेटाइट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट. लेकिन इसमें जो आयरन कंटेंट रहता है वो कम होता है मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में 50 to 60%. द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर. जो मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं इंडिया में वो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट्स. इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड. उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर पाया जाता है. फिर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में है. वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड. फिर है बलारी चित्रदुर्गा बेल्ट. और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड करता है स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नीज. मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय. जो मैग्नीज है वो मेनली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में स्टील के एंड नॉन फेरस मैग्नीज अलॉय. Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. और 10 kg मैग्नीज की ज़रूरत होती है 1 ton ऑफ स्टील बनाने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर. और इसको यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स में. फिर है नॉन फेरस मिनरल्स. इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री. इंडिया का रिजर्व और प्रोडक्शन नॉन फेरस मिनरल्स का वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering, and electrical industries. Copper. India is critically deficient in the reserve and production of copper. India critically deficient है reserve और production में copper के. Being malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables. और being malleable, ductile और good conductor है ये, इस वजह से कॉपर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan, and Singhbhum district of Jharkhand are leading producers of copper. इसके बाद है bauxite. Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance, that alumina and
and later aluminium is obtained. Several ores contain करता है aluminium. It is from bauxite से a clay like substance that alumina and later aluminium is obtained. और इसके बाद इससे alumina और फिर aluminium इससे obtain किया जाता है. Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. Bauxite deposit आर फॉर्म, ये फॉर्म जो बॉक्साइट डिपॉजिट होते हैं वो फॉर्म होते हैं डिकम्पोजिशन से वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट. इंडियाज बॉक्साइट डिपोजिशन आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू. और इंडिया का जो बॉक्साइट डिपोजिशन है वो मेनली पाया जाता है अमरकंटक प्लेट्यूज में, महिकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी. Odisha was the largest bauxite producing state in India in 2016 to 17. और जो उड़ीसा था वो लार्जेस्ट बॉक्साइट स्टेट रहा था 2016 और 17 में इंडिया का. इसके बाद है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इसमें पहले पढ़ेंगे मीका के बारे में. मीका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स. मीका एक मिनरल है जो मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स से बना हुआ है. इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स. और ये स्प्लिट हो सकता है इनटू थिन शीट्स में. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeter high. जिसकी मोटाई जो फ्यू सेंटीमीटर ही है उसमें से 1,000 ऑफ शीट निकाली जा सकती है. मीका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industries. Mica deposits are found in the northern edge of Chota Nagpur Plateau. कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. जो मीका डिपॉजिट्स है वो नॉर्दर्न एजेस में पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में झारखंड की. इन राजस्थान द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर. और राजस्थान में भी मीका प्रोड्यूसिंग एरिया है अजमेर के आसपास. आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री. और आंध्र प्रदेश भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मीका का कंट्री में, इंडिया में. रॉक मिनरल्स लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स. जो लाइमस्टोन है वो पाया जाता है एसोसिएशन में रॉक्स के, कंपोज करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के. इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. इस सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री. और लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस. फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का कंजर्वेशन. वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दैम. हम सभी अप्रिशिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का अपॉन मिनरल डिपॉजिट एंड द सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दैम. द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो टोटल वॉल्यूम है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स का एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज. हम रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज को दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड. द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर indefinitely small in comparison to the present rates of consumption. तो जो रिप्लेनिशमेंट का रेट है वो काफी कम है in comparison of present rate of consumption. Mineral resources are therefore finite and non-renewable. जो mineral resources है वो finite है और non-renewable है. Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possessions. जो rich mineral deposit है हमारी कंट्री का वो extremely valuable है लेकिन short-lived possession है. Continued extraction of ores leads to increasing cost as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality. जो continued extraction है ores का वो उसकी वजह से increase होता है cost mineral extraction का क्योंकि उसको greater depth से निकाला जाता है along with decrease in quality और उसकी quality में भी decrease होता है. A concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources. A
A concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. हमको efforts लगाने चाहिए ताकि हम use कर सके mineral resources को एक सही तरीके से एक planned manner और sustainable manner में. Recycling of metals using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources for the future. और recycling होना metals का use करना scrap metals और other substitute को वो steps है conserve करने के लिए mineral resources को for the future. Energy resources. Energy is required for all activities. Energy required होती है सभी activities के लिए. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. Energy को generate किया जा सकता है fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity से. Energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources. Conventional sources include करता है firewood, cattle dung cake, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydel and thermal. Non-conventional sources include करता है solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. Conventional sources of energy उसमें पहले है coal. In India, coal is the most abundantly available fossil fuel. India में coal most abundantly available fossil fuel है. It provides a substantial part of the nation's energy need. ये provide करता है substantial part nation की energy need का. It is used for power generation. इसको use किया जाता है power generation के लिए. To supply energy to industry as well as for domestic needs. पावर सप्लाई करने के लिए एनर्जी सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements. Coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. Coal form होता है due to compression of plant materials over millions of years. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and time of burial. ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल पे. डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट. डिकेइंग प्लांट्स का इन स्वैम्प प्रोड्यूस करता है पीट विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी. इसका लो कार्बन और हाई मॉइस्चर होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें एंड लो हीटिंग कैपेसिटी होती है इसकी. लिग्नाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल. जो लिग्नाइट होता है वो एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट. ये सॉफ्ट और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें. कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल. जो कोल जो बरीड होता है डीप एंड सब्जेक्टेड होता है इंक्रीज टेम्परेचर का वो बिटुमिनस कोल है. इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज. ये मोस्ट पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज के लिए. मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल. जो मेटलर्जिकल कोल है वो एक हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल है. एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. और जो एंथ्रासाइट है वो हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है. फिर है इसके बाद पेट्रोलियम. पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल. पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल वो नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया का आफ्टर कोल. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग. ये प्रोवाइड करता है फ्यूल फॉर हीट और लाइटनिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री. जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो एक्ट करती है एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड नुमेरस केमिकल इंडस्ट्रीज. मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया. जो मुंबई हाई, गुजरात और असम है वो मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज हैं इंडिया के. Assam is the oldest oil producing state of India और असम oldest oil producing state रहा है इंडिया का. Natural gas. Natural gas is an important clean energy resource found in association with or without petroleum. जो natural gas है वो एक important clean energy resource है जो found किया जाता है in association with or without petroleum. It is used as a source of energy as well as industrial raw material in the petrochemical industry. ये एक सोर्स है एनर्जी का एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल. और नेचुरल गैस को कंसिडर किया जाता है एज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. क्योंकि इससे लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है.
इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी. Electricity has such a wide range of applications in today's world. Electricity का एक wide range application है today's world में that its per capita consumption is considered as an index of development. और इसका जो per capita consumption है उसको consider किया जाता है index निकालने के लिए development का. Electricity is generated mainly in two ways. Electricity को generate किया जाता है in two ways में by running water which drive hydro turbines to generate hydroelectricity and by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. Hydroelectricity is generated by fast flowing water. जो hydroelectricity है उसको generate किया जाता है by fast flowing water से, which is renewable resource, जो एक renewable resource है. और thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas, जो कि एक non renewable fossil fuel है for generating electricity. इसके बाद है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन abundance of sunlight, water, wind and biomass. It has the largest programs for the development of these renewable energy resources. Nuclear energy और atomic energy, it is obtained by altering the structure of atoms. इसको obtain किया जाता है by alter the structure of atoms. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat. जब alter किया जाता है इनको तो heat release होती है and this is used to generate electric power. और इसी से फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है. यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर. और जो यूरेनियम थोरियम जो अवेलेबल है झारखंड में और अरावली रेंजेस में राजस्थान के, उनको यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर को. द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम. और मोनाजाइट सैंड केरला की वो भी रिच है थोरियम में. सोलर एनर्जी. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है. इट हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी. और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ताकि वो ट्रैप कर सके सोलर एनर्जी को. फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में. इसके बाद है विंड पावर. इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर. इंडिया के पास ग्रेट पोटेंशियल है विंड पावर की भी. द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नगरकोइल टू मदुरई. अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स. फिर है बायोगैस. Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. Shrubs, farm waste, animal and human waste को use किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रूरल एरियाज में स्पेशली. Decomposition of organic materials gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene during cake and charcoal. और decomposition organic matters का which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. इसके बाद है tidal energy. Oceanic tides can be used to generate electricity. Oceanic tides को भी यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को. इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जियोथर्मल एनर्जी को रिफर किया जाता है टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होते हैं यूज करके हीट को, जो अर्थ के इंटीरियर से निकलती है उस हीट को यूज करके जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब है लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो एनर्जी है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, उनको ज़रूरत होती है इनपुट्स की एनर्जी के. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising. और इसी की वजह से consumption energy का वो day by day increase हो रहा है all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. और
promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources and the twin planks of sustainable energy. promotion energy conservation का और increase करना use of renewable energy resource का, ये कुछ plans हो सकते हैं sustainable energy के लिए. India is presently one of the least energy efficient country, और presently जो India है वो least efficient country है energy के energy source में in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resource, और हमको इसको judicious use करना चाहिए energy का. For example, as concerned citizen, we can do our bit by using public transport systems instead of individual vehicles. और इंडिविजुअल व्हीकल्स के बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके इसको बचा सकते हैं. स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, स्विच ऑफ करके इलेक्ट्रिसिटी को जब ये इसका यूज़ नहीं हो रहा हो. यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, यूज़ करके पावर सेविंग डिवाइसेस को. एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. आफ्टर ऑल, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड. Thank you everyone. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.